Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padat Vigyan. So friends, आज भिडियो रे आमे 2018 मसीहा OUVS PGD फिजिक्स क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 41 रो 60 पर्यंत सॉल्व करबा। तो मु सब क्वेश्चन रो कांसेप्ट एंड फार्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम मु कहि देबी एंड यू हैव टू डू द कैलकुलेशन पार्ट. So let's begin. Look at the first question number 41. कौन देछि a LED has a maximum drop of 1.5 volt. If the supply voltage is 10 volt and RS माने the series resistance is 470 ohm, then the maximum value of LED current will be dash. So we have an LED, ठीक अछि, and it is connected in series with a resistance जार value केते कहि देछि 470 ohm, ठीक अछि, and the supplied voltage is equal to 10 volt. गोटे बैटरी लगे छि एठी the value of the battery voltage is 10 volt, ठीक अछि. से पचार जे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एलईडी करंट. तो एठी देखो कोन दिछि एठी ना द एलईडी हैज ए मैक्सिमम ड्रॉप ऑफ 1.5 वोल्ट. ता माने आमे एलईडी अक्रॉस रे आमे 1.5 वोल्ट रो वोल्टेज पाउचे, ठीक अछि. तो आउट ऑफ 10 वोल्ट जदि एलईडी रे आसुची 1.5 वोल्ट तो रेस्ट 8.5 वोल्ट कोडी आसीबो. द रेस्ट 8.5 वोल्ट विल बी अक्रॉस 470 ओम. तो जदि 470 ओम रे वोल्टेज आसुची 8.5 वोल्ट त आमे पाई जिबा केते हेबो करंट. आई केते आई होची वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, सो V बाय RS. तो मेडी को वोल्टेज पकेबा वोल्टेज अक्रॉस RS जोटा होची 8.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय RS केते RS होची 470 ओम, ठीक अछि. ताको जदि सॉल्व करबा you will get the answer 18.1 milliampere. So option 3 is the correct answer. Next question कौन देछि calculate the escape velocity on the surface of the moon taking its mass as 7.3 into 10 to the power 22 kg and radius केते कहि देछि 1.7 into 10 to the power 6 meter and the value of capital G is given 6.7 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square. तो मन रखता escape velocity रो फॉर्मूला कौन 2 into capital G into mass of the planet or satellite divided by r whole square root, ठीक अछि. तो एठी जीरो वैल्यू कहि देछि, mass of moon भी given अछि, radius given अछि, so put all those values and you will get the answer as 2.39 kilometer per second, ठीक अछि. The answer will be in terms of meter per second but you have to convert it to kilometer per second, so you will get option 1 as the answer. Next question कौन देछि एठी how long will the light take to travel a distance of 500 meter in water and water mu केते कहि देछि, mu of water केते कहला 4/3 and velocity of light in vacuum केते कहि देछि 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. बा मैं जानि छे the value of c केते 3 into 10 to the power 8 meter per second, ठीक अछि. तमे बाहर करबा जे what is the time taken by light to travel a distance of 500 meter in water. So time रो फॉर्मूला कौन ना distance by speed, ठीक अछि. तो आमे देखिबा एठी केतला डिस्टेंस the distance is 500 meter and what is speed मन देखताओ mu केते mu होची c by v. तो v केते हबो v हे जिवो c by mu, ठीक अछि. तो लिखिबा हम एठी c by mu, c केते c होची 3 into 10 to the power 8 by mu. mu केते अछि mu अछि 4/3, ठीक अछि. तो ए जो 4/3 टा ऊपर को पळेबा से मल्टीप्लाई हे जिवो एठी. तो एटा केते हे जिवो 500 into 4/3 divided by 3 into 10 to the power 8, ठीक अछि. तो ए फॉर्मूला अप्लाई करबा and you will get the answer as 2.22 into 10 to the power minus 6 second. Next question कौन दीजिए थी in a series circuit with R equal to 10 ohm XL केते कहि दीची 25 ohm and XC केते कहि 35 ohm. तो माने रेजिस्टेंस हला केते 10 ohm, XL केते कहिला 25 ohm and XC केते कहिला X equal to 35 ohm, ठीक अछि. and effective current केते कहि 5 ampere. the power dissipated in the circuit in watt is dash. तो मन रखता गोटे AC सर्किट रे एवरेज पावर फॉर्मूला कौन P average equal to V RMS into I RMS into cos phi, ठीक अछि. तो
ये जो cos phi लिखा है व्हाट इज cos phi? cos phi होची r by z, cos phi ला पावर फैक्टर तक लिखा r by z। तो देखो ये जो क्वेश्चन रे जेहेतु v rms कहिनी तो आमे i rms टर्म रे बाहर करबा, ठीक अछि। तो मन रखता i rms केते, i rms होची v rms by z। व्हाट इज z? z इज द इम्पिडेंस। तो v rms केते हबो, v rms हे जबो i rms इंटू z। तो वर्तमान पावर एवरेज पावर केते हे जबो, इन प्लेस ऑफ v rms आई कैन राइट i rms इंटू z। तो फॉर्मूला कौन हो, फॉर्मूला हो i rms रो स्क्वायर इंटू z इंटू cos phi, ठीक अच्छे। तो cos phi कहते, cos phi होची r by z, ओके। तो ये देखो z कौन कटि जीव। तो i rms केते देइची 5 एम्पियर देइची, तो 5 रो स्क्वायर हेगला इंटू r केते, r होची 10 ओम। तो 5 रो स्क्वायर थबो 25, सो 25 इंटू 10 विल बी 250। सो 250 वाट इज द आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो नंबर 45 क्वेश्चन कौन देइची, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू डैश। तो यहाँ हूँ गोटे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। आमर जो बाइंडिंग एनर्जी थाए दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बा ताको मैं कहि परिबा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कौन देइची एठी, ए पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए 200 पिकोफैराड कैपेसिटर and a coil of inductance 200 microhenry and resistance 5 ohm is connected across a 0.2 volt 800 kilohertz signal source. Determine the Q value of the circuit. So मन रख जदि सीरीज LCR सर्किट देथिबो तो सीरीज LCR सर्किट रे Q फैक्टर फॉर्मूला कौन 1/r square root of L by C. But if you have parallel LCR circuit, पैरेलल LCR सर्किट, तो से केस रे Q फैक्टर केते हे जिवो, द फॉर्मूला इज R इंटू C बाय L स्क्वायर रूट, ठीक अछि। तो ये जो क्वेश्चन से कहि छि एटा होछि गोटे पैरेलल सर्किट कहि छि। तो आमे यदि वैल्यू पुट करबा R केते, R होछि 5 ओम, ठीक अछि। देन C केते, C होछि 200 पिकोफैराड माने 10 टू द पावर -12 लिखबा एठी, डिवाइड बाय L केते, L होछि 200 माइक्रो हेनरी, तमने 200 into 10 to the power -6 हेनरी। देन यू हैव टू गिव द स्क्वायर रूट सिंबल, तो एटा कटि जबो एठी। तो एटा केते 5 into एटा हे जबो 10 रा पावर -6 तार स्क्वायर रूट माने 10 रा पावर -3 हे जबो। सो द आंसर शुड बी 5 into 10 to the power -3, बट ऑप्शन रे 200 लिखिछि राइट आंसर। ता माने आई थिंक से 1/r L by C रो स्क्वायर रूट फॉर्मूला यूज कर देछि। देखिबा मैं चेक करिबा, जदि मैं ए फॉर्मूला यूज करिबा तो 1/5 इंटू L केते, L होची 200 माइक्रो हेनरी, ता माने 10 टू द पावर -6 रहला एठी, डिवाइड बाय C केते 200 पिकोफैराड 10 टू द पावर -12, तो एटा केते हे जबो 1/5 इंटू एटा हे जबो 10 टू द पावर 3 हे जबो, ता माने 1000/5 दिस इज इक्वल टू 200, ठीक अछि। तो आमे यदि ए फॉर्मूला यूज करछे आंसर भावछे 200, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला। This formula is only for series LCR circuit, but if we have parallel circuit then we have to use this formula. ता माने क्वेश्चन ठीक अछि बट ऑप्शन रे आंसर भूल लिखा हिची। सो डोंट यूज दिस फॉर्मूला। आमे ए फॉर्मूला यूज कले आंसर ठीक बाहरुची, बट दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला। तो एमते किछि क्वेश्चन आसले एग्जाम यदि एमते ऑप्शन भूल थिबो, यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट इट एंड यू विल गेट द ग्रेस मार्क। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नंबर 47 देखो एटा कौन रही, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क इज 5 into 10 to the power 4 and calculate the time interval after which its energy becomes 1/10 of its initial value and the frequency of the tuning fork केते कहि देछि 300 हर्ट्ज बा 300 सेकंड इनवर्स। देखो एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा, आको हमें केमते सॉल्व करिबा मन रखि था। गोटे ट्यूनिंग फॉर्क रे जो एनर्जी थाए, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर -ओमेगा इंटू t डिवाइडेड बाय q। q इज द क्वालिटी फैक्टर, ठीक अछि। तो इनिशियल एनर्जी केते हबो ei, सपोज टाइम t1 रे
द एनर्जी वाज ei बा E1 आम लिखि देबा सो E1 माने इनिशियल एनर्जी केते हबो प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर minus omega t1 divided by q and at a time t2 the final energy will be proportional to and E2 is proportional to e to the power minus omega t2 by q ठीक अछि तो अबे देखो E2 by E1 माने फाइनल एनर्जी बाय इनिशियल एनर्जी E2 by E1 केते हबो इक्वल टू e to the power minus omega t2 divided by q into बा divided by e रा पावर minus omega t1 divided by q तो देखो ये E2 by E1 केते कहि छि एटा कहि दी छि 1 by 10 कहि दी छि तो मैं 1 by 10 लिखिबा सो 1 by 10 इक्वल टू केते हिजबो e to the power minus omega by q कमन हे गेले एटा हिजबो t2 minus t1 ठीक अछि e to the power minus omega by q अब कमन हे जिबा एटा केते हिजबो एटा हिजबो t2 minus t1 हे जिबो सो दिस t2 minus t1 is the time interval ता माने हम लिखि परबे एठी e to the power minus omega delta t divided by q is equal to 1 by 10 बा e to the power omega delta t by q equal केते हे जिवो 10 हे जिवो तले omega delta t by q केते हबो एटा हे जिवो ln 10 ठीक अछि आ मन लगता ln 10 is equal to केते हबो 2.303 log 10 log 10 होची 1 तो एटा हे जिवो 2.303 हे जिवो ता माने ln 10 is 2.303 तो ओमेगा डेल्टा टी बाय क्यू आमे केते पाइले 2.303 पाइले हमको बाहर करे छै व्हाट इज डेल्टा टी द टाइम इंटरवल तो एटा केते हबो 2 केते हबो 2.303 into q माने क्वालिटी फैक्टर 5 into 10 to the power 4 देछि डिवाइडेड बाय ओमेगा व्हाट इज ओमेगा 2 pi f तो पाई केते 3.14 f केते f कहि देछि 300 कहि देछि ठीक अछि सो सॉल्व दिस एक्सप्रेशन and you will get the answer केते 61 सेकंड हे जिवो so in this way you can solve this question now let us go to number 48 question को देछि a thermally insulated 19 centimeter long copper rod of 0.785 centimeter square cross sectional area is heated at one end to 100 degrees Celsius while the other end is kept at 30 degrees Celsius. Calculate the amount of heat that will flow in 10 minutes along the way. The thermal conductivity of copper is 380 watt per meter per Kelvin. तो मन रखता in thermal conduction the amount of heat flowing from one cross section to other cross section. Suppose एमती गोटे rod अछि the length of the rod is suppose L and A is the area of cross section. A इला कोन A होची area cross section ठीक अछि and there is a temperature difference between the two ends. So T1 T2 are the temperatures. Suppose T1 is high temperature, T2 is low temperature. The energy flowing from left cross section but from high temperature region to the low temperature region तार फॉर्मूला कोन हबो Ka T1 minus T2 into time divided by length ठीक अछि तो एठी देखो आमे सबु वैल्यू को पुट करबा SI सिस्टम रे पुट करबा लेंथ कहि छि केते लेंथ कहि दी छि 19 सेंटीमीटर ताको में मीटर करबा 0.19 मीटर हबो एरिया केते कहि दी छि 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर सो एटा केते हिजबो 0.785 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर हिजबो देन T1 minus T2 केते हबो 100 minus 30 सो T1 minus T2 केते हिजबो 70 हिजबो एंड लेंथ तो ऑलरेडी कहि दी छि एठी k भी गिवन अछि एसआर रे दी छि ऑलरेडी एंड टाइम हेते केते कहि छि टाइम कहि छि 10 मिनिट्स बा आको में कहिबा 600 सेकंड ठीक अछि so in this formula put all the values and you will get answer जो have a 6.6 kilojoule okay so you can solve this question in this method next question को देछि number 49 simplify the following boolean function
तो देखो ये कौन देछि ना a माइनस b बार c इंटू a प्लस b बार c। देखो ये जो क्वेश्चन अच्छी ये क्वेश्चन एक्चुअली भूल अच्छी बिकज बुलियन अलजेब्रा रे हमर प्लस अच्छी एडिशन अच्छी देन मल्टीप्लिकेशन अच्छी बट देयर इज नो सब्ट्रैक्शन। तो जो a माइनस लिखी ये माने दिस ऑपरेशन इज नॉट वैलिड इन बुलियन अलजेब्रा ठीक अच्छे। तो से आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग बट इफ यू थिंक दैट दिस क्वेश्चन इज राइट एंड इफ यू कैन गेट द आंसर देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आम ए एक क्वेश्चन को स्किप करवा नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर के 50। सो दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोनिक्स ट्रांजिस्टर चैप्टर क्वेश्चन आसी से कह ए ट्रांजिस्टर हैज अल्फा केते कहला अल्फा कहला 0.98 एंड ICO केते कहला 6 माइक्रो एम्पियर। IB केते कहला IB कहला 100 माइक्रो एम्पियर। से पचारला जे कैलकुलेट IE रो वैल्यू केते हबो। तो मन रखता एटा हচ্ছে कोन अल्फा देछि माने एटा हচ্ছে गोटे कॉमन बेस कनेक्शन ठीक अछि। तो कॉमन बेस कनेक्शन रे मन रखता IE रो वैल्यू केते हबो IB प्लस IC। सो IE हेला कोन IE होछि एमिटर करंट IB होछि बेस करंट एंड IC इज द कलेक्टर करंट। तो क्वेश्चन ऑलरेडी बेस करंट कहि देछि बट IC देनी इठी ICO देछि तो इठी IC देनी। तो आमे आगो IC बाहर करिबा। तो IC रो फॉर्मूला कोन IC रो फॉर्मूला होछि अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इंटू IB प्लस ICO डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये ऑलरेडी वैल्यू सब कहि देछि अल्फा केते कहि 0.98 कहिछि IB भी दे देछि। सो पुट ऑल दोस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन यू गेट IC। वंस यू गेट IC ताको में ऐड कर देबा IB रे आमे पाइ जिबा IE पाइ जिबा ठीक अछि। सो फॉलो दिस प्रोसेस एंड डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर ऑप्शन 2 5.3 मिली एम्पियर आंसर आसीबो। नंबर 51 कौन देछि इफ the polarizing angle of a piece of glass for the green light is 60 degree then calculate the angle of minimum deviation for a 60 degree prism made of the same glass। तो देखो एठी दुईटा कांसेप्ट यूज हेछि कोन कांसेप्ट यूज हेछि गोटे होछि कोन ना द ब्रिस्टर एंगल बा द एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंड प्रिज्म फार्मूला। तो मन रखता जदि ब्रिस्टर एंगल बा पोलराइजिंग एंगलटा देछि केते 60 डिग्री कहि देछि तो आम ये पाई जिबा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर ग्रीन कलर। तो म्यू रो फॉर्मूला कोन म्यू होछि tan IP ठीक अछि। तो एटा केते हिजबो tan 60 हिजबो एंड tan 60 केते √3 ठीक अछि। आमे पाई गेले जे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। तो से 50 गोटे प्रिज्म अछि से प्रिज्म रो केते एंगल 60 डिग्री। तो सेही केस रे व्हाट विल बी द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो आमे गोटे फॉर्मूला जानि छे प्रिज्म फॉर्मूला म्यू केते sin A प्लस डेल्टा m by 2 डिवाइडेड बाय sin A by 2। तो ये म्यू केते कहिछि √3 कहि देछि sin A केते 60 डिग्री कहिछि 60 डिग्री रो प्रिज्म कहिछि एटा। तो 60 प्लस डेल्टा m by 2 डिवाइडेड बाय sin A by 2। अगेन एठी A केते 60 डिग्री तो sin A by 2 केते हिजो एटा हिजो sin 30 हिजो। तो एमे पाइ जबा कोन ना sin 60 प्लस डेल्टा m by 2 इज इक्वल टू √3 इंटू sin 30। sin 30 से मल्टीप्लाई हिजो तो व्हाट इज sin 30 हाफ तो एटा √3 by 2 हे गेला √3 by 2 जहा sin 60 से ता माने 60 प्लस डेल्टा m by 2 आउ 60 दे आर सेम। तो 60 प्लस डेल्टा m by 2 इक्वल टू 60 पाइले। तो बे 60 प्लस डेल्टा m केते हिजबो 120 हिजबो बा डेल्टा m केते हिजबो डेल्टा m विल बी 60 डिग्री ठीक अछि। ता माने द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी 60 डिग्री। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। So in this way you can solve this question. So now look at the next question. Question kon dechi na two equal and similar charges 4 centimeter apart in air repel each other with a force equivalent to that of 2 kg weight. So find the charge in coulombs.
suppose you have two charges q and q and they are identical ठीक अछि and the distance between them is 4 centimeter. So r केते कहै छै r कहै छै 4 centimeter बा 4 into 10 to the power minus 2 meter and the repulsive force between them is केते 2 kg weight. तो एठी 2 kg weight माने कोन 2 kg ऑब्जेक्ट रो वेट त माने आपको लिखिबा में 2 kg into g केते g होची 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त माने द फोर्स इज 19.6 न्यूटन ठीक अछि. तो आमे जानि छै जे कूलम्स फोर्स रो फार्मूला कोन ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 divided by r square ठीक अछि. So the value of this coulombs constant is 9 into 10 to the power 9 and q1 q2 both are same तो एटा केते q square हे जबो divided by r square r केते r एतिक ऑलरेडी कहि दै छी and this electric force but this repulsive force is equal to 19.6 newton. तमे एथ्रु सॉल्व करि के आराम से पाइ जेबो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज. सो ऑप्शन 2 विल बी द आंसर. नेक्स्ट जिबा नंबर 53 कोन इज क्वेश्चन टा a conducting sphere of radius 10 centimeter. Suppose गोटे conducting sphere अछि and its radius is 10 centimeter. Okay, has unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 newton per coulomb and it points inward ता माने ए जो sphere center रो 20 cm दूर रे 20 centimeter दूर रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते कहि दै छी 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम and it is directed inward. तो inward electric field माने कोन we have negative charges on the sphere ठीक अछि. तो आमे जानि छै गोटे स्फीयरिकल गोटे चार्ज स्फीयर पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला कोन आउटसाइड द स्फीयर ए जेहेतु ए कोन पॉइंट 20 cm दूर रे अछि त माने इट इज आउटसाइड द स्फीयर. तो आउटसाइड द स्फीयर पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला कोन k into charge divided by distance रो स्क्वायर ठीक अछि. तो एटी r केते 10 सॉरी 20 cm कहै छी r मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ठीक अछि एटा 20 cm कहै छी. तो अगेन हमें r को लिखिबा 2 into 10 to the power minus 1 मीटर हे जिवो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी कहि दै छी. तो एई फार्मूला पुट करिबा e equal to k q by r square. हमें जहां भी आंसर पाइबा q रो वैल्यू जहां पाइबा we have to use a negative sign because the electric field is inward ता माने we have a negative charge. तो फर्स्ट हमें बाहर करिबा चार्ज रो मैग्नीट्यूड केते जहां बाहरिबो then you have to use a negative sign. So you'll see that option 1 will be the correct answer. Next question कौन दिस number 54. Two cars traveling on a straight road cross a kilometer stone A at the same time with velocities 20 meter per second and 10 meter per second and with constant accelerations of 1 meter per second square and 2 meter per second square respectively. If they cross another kilometer stone B at the same time, then the distance between A and B is dash. Suppose at point A we have a kilometer stone and there are two cars. They cross that kilometer stone at the same time. ठीक है and at that moment the speed of the first car was 20 meter per second and its acceleration was 1 meter per second square. But for the second car the speed was 10 meter per second and the acceleration was 2 meter per second square. ठीक अछि. तो से माने after some time they crossed another kilometer stone at the point B. ता माने से माने से जो टाइम टी रे दे हैव कवर्ड इक्वल डिस्टेंस ठीक अछि. जेहेतु से माने सेम टाइम रे किलोमीटर स्टोन को क्रॉस करछोंती ता माने दे हैव कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन द टाइम t. सपोज द टाइम टेकन इज t. तो आमे देखिबा ए जो डिस्टेंस केते आसीबो द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b. तो जदि हमें एठी यूज करिया को फार्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ठीक अछि. तो फर्स्ट कार पाई कौन होबो डिस्टेंस s इक्वल टू u1t प्लस हाफ a1t स्क्वायर. तो u1 केते कहि दै छी 20 कहि छी तो 20 into t प्लस हाफ into केते हला a1 1 into t स्क्वायर. तो एटा केते हिजबो 20t प्लस 0.5 t स्क्वायर.
सिमिलरली फॉर द सेकेंड कार एस केते आसीबो सेकेंड कार यू केते 10 कहिछि तो एटा हिजबो 10t प्लस हाफ a2 केते a2 होछि 2 तो 2 into t रो स्क्वायर तो एटा हिजबो 10t प्लस t स्क्वायर एटा 2 कटि जिवो केते t स्क्वायर आसला दिस s एंड दिस s आर इक्वल ठीक अछि तो आके बदी इक्वेट कर दबा इक्वेट कला पर में टाइम पाई जिबा सो लेट अस इक्वेट दिस टू इक्वेशंस तो एठी कहला हम लिखिबा एठी 20t प्लस 0.5 t स्क्वायर इज इक्वल टू 10t प्लस t स्क्वायर ता माने हमें 10t को नहीं आसीबा लेफ्ट को एंड 0.5 t स्क्वायर जीवो राइट को तो 20t माइनस 10t एटा हे जीवो 10t इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 0.5 t स्क्वायर हे जीवो 0.5 t स्क्वायर तो t कैंसिल हे गेला तो हमें t केते पाइबा 10 बाय 0.5 माने 20 सेकंड ता माने दे रीच एट द पॉइंट b इन 20 सेकंड्स तबे डिस्टेंस केते हबो put the value of t in any equation either आम एथिरे पुट करि परिबा और एथिरे पुट करि परिबा let us put in this equation तो 10 into t केते 20 प्लस t स्क्वायर माने 20 रो स्क्वायर तो एटा केते एटा हे जबो 200 प्लस एटा हबो केते 400 तो केते आंसर 600 हे जबो ता माने the distance between a and b is 600 meter so अब हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 so next question कोन दिछि a motor car is approaching a road crossing with a speed of 75 km per hour. A constable standing near the crossing hears the frequency of its horn at 260 hertz. ठीक अछि तमन एटा होछि तार apparent frequency. What is the real frequency of the horn? तो एटा होछि कोइ क्वेश्चन based on Doppler's effect. तो मन रखता apparent frequency formula कौन nu dash equal to देखो एठी कोन एठी observer माने the traffic constable is the observer is at rest but the source is moving the motor car is the source of sound the source is moving observer is at rest तो ए केस रे apparent frequency formula कौन हबो nu dash equal to v divided by v minus vs into nu तो एठी v कौन v होची the velocity of sound in air which is 332 meter per second vs कौन source रो speed 75 km per hour कहिची but we have to convert this into meter per second तो केमते करबा 75 into 5 by 18 कर दबा ठीक अछि हमें vs पाई गले once you get vs put the value here nu dash केते कहि दीची nu dash कहिची 260 कहि दीची ठीक अछि so in place of nu dash put 260 in place of v put 332 meter per second in place of vs put this value हमें जहाँ पाई थिबा and you can calculate the value of nu which will be 244 second inverse by 244 hertz. Now look at next question number 56 कौन दे जेठी ना a flywheel is a uniform disc of mass केते कहिला 82 किलोग्राम and radius केते कहिला radius ला 60 सेंटीमीटर बा एटा हेजबो 6 into 10 to the power minus 1 meter it rotates at 80 rpm तो frequency केते कहला frequency कहला 80 rpm माने revolutions per minute but we have to convert it into rps माने revolutions per second तो कहते हबो 80 by 60 rps तो एटा हेजबो कहते 4 by 3 rps about an axis the flywheel is rotating about an axis passing through the center and perpendicular about the geometrical axis ठीक अछि so what is its kinetic energy तबे देखो गुटे डिस्क अछि एमतिया so this is a disk ठीक अछि ए डिस्क रो रेडियस कहिला तार मास कहिला एंड से कोन कहला the disk is rotating तो ए डिस्क रो से जो एक्सिस माने जो एक्सिस अबाउट से रोटेट करूची से एक्सिस कोन देची ना एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर बट परपेंडिकुलर अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस एडा गोटे इंपोर्टेंट जिंस again I am reading the question कोन देची ना a flywheel is a uniform disc of mass 82 kilogram and radius केते कला 60 centimeter
it rotates about at a frequency of 80 rpm about an axis through the center and perpendicular about its geometrical axis. तो देखो ये जो डिस्क रो geometrical axis कोटा हबो suppose this one is the geometrical axis एटा ठीक अछि. तो एबे देखो हमर काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्मूला कोन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होची हाफ इनटू आई ओमेगा स्क्वायर ठीक अछि. तो ओमेगा केते हबो ओमेगा हे जिवो 2 पाई एफ. तो फ्रीक्वेंसी रेडी कहि देछि हमें ओमेगा पाई जिबा. बट व्हाट अबाउट आई. तो मन रखता जदि हमें ए जो डिस्क रो आई बाहर करबा अबाउट दिस एक्सिस तो सेटा हबो हाफ एम आर स्क्वायर आसीबो. केते आसीबो हाफ एम आर स्क्वायर. किंतु ये जो क्वेश्चन देछि जे द एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर बट परपेंडिकुलर अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस. ता माने जदि आमे एटा कोन बा ज्योमेट्रिकल एक्सिस नबा ता माने दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द ज्योमेट्रिकल एक्सिस ठीक अछि. ता माने आई थिंक आमे अबाउट डायमीटर आमे बाहर करिबा तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो जेतु मैं क्वेश्चन सॉल्व करिने सो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड. तो फर्स्ट तमे कोन करिवो आग आई जगह हाफ एम आर स्क्वायर पुट करो. देखो आंसर कोन बाहरुची. यदि आंसर इतिके भलो तो ठीक अछि. जदि आंसर इतिके न आसुची देन आमे भाबिबा जे दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तमने अबाउट द डायमीटर केते हबो 1/4 एम आर स्क्वायर हे जिवो ठीक अछि. सो दुईटा वैल्यू पुट कर ट्राई करो जोडा आंसर आसीबो दैट इज द करेक्ट वन. बट आई थिंक ये जो लिखा है जे परपेंडिकुलर टू ज्योमेट्रिकल एक्सिस ता माने वी हैव टू फाइंड अबाउट द डायमीटर ठीक अछि. सो लेट अस चेक दिस वैल्यू नीचे चेक करो देखो आंसर कोन आसुची. नेक्स्ट एम जिबा नंबर 57 कोन देछि ना ए चार्ज स्फीयर ऑफ 7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन एयर फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. अगेन सेम फार्मूला k q by r स्क्वायर पके दबा एठी इलेक्ट्रिक फील्ड k केते k होची 9 into 10 to the power 9 तापरे q तो दे दीजिए 7 माइक्रोकूलम ता माने 7 into 10 to the power -6 कूलम एंड r केते कहछि 10 सेंटीमीटर माने 10 to the power -1 मीटर. सो पुट ऑल दिस वैल्यूज एंड यू विल गेट आंसर ऑप्शन 3. तो नेक्स्ट आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. सो 58 नंबर क्वेश्चन एटा को कांसेप्ट आसी फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. सी कहै छै ना ए बॉडी टेक्स 4 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस. देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. तो देखो हमें एबे एक क्वेश्चन केमती सॉल्व करबा. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कोन कहै छै ना द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ता माने dq by dt is proportional to what the temperature difference between the system and the surrounding ठीक अछि. ता माने सपोज T is the temperature of the body and T naught is the temperature of surrounding ठीक अछि. ता माने dq by dt the rate of loss of heat is proportional to T minus T naught. बट dq केते हबो dq हे जिवो mc into dt ठीक अछि. तो d कैपिटल d माने कोन एटा होची चेंज इन टेम्परेचर, m कोन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड c कोन c होची दर स्पेसिफिक हीट. तो एबे मु लिखि पारे बेया देखो एटे गोटे माइनस साइन द बिकॉज़ द नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट द बॉडी इज लूजिंग हीट. तो एबे आकु मु लिखि पारिबी जे माइनस mc d कैपिटल T by d small t is proportional to t minus t naught ठीक अछि. तो एबे देखो एबे हमें ए एक्सप्रेशन है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करबा. तो सी कोन कहै छै एठी ना हमें जो बॉडी नै छै मानक से बॉडी रो मास केते m एंड c द स्पेसिफिक हीट. तो द बॉडी टेक्स 4 मिनट्स टू कूल डाउन फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस ठीक अछि. एंड एठी कोन कह दी छी जे द रूम टेम्परेचर माने द सराउंडिंग टेम्परेचर केते कहला 15 डिग्री सेल्सियस. ता माने टी नॉट हमें केते पकेबा 15 डिग्री सेल्सियस पुट करबा. ओके तो देखो एठी फर्स्ट केस रे कोन होची 100 डिग्री रु 70 डिग्री जाए से कूल डाउन होची. तो आमे ए केस रे ए जो
टी जगह कौन पुट करवा वी कैन नॉट पुट 100 वी कैन नॉट पुट 70 आम कौन पुट करवा पुट करवा द एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज ता माने 100 प्लस 70 बाय 2 जोटा हम 85 हो जीवो ठीक अच्छे। तो फर्स्ट केस रे कौन हम आम लिखा माइनस एम सी डी टी डी टी रा माने कौन डी टी हूँ द चेंज इन टेम्परेचर ठीक अच्छे। आउ डी स्मॉल टी कौन डी स्मॉल टी हूँ आमर टाइम इंटरवल तो केते चेंज हो टेम्परेचर 100 टू 70 चेंज है 30 चेंज है तो माइनस एम सी 30 लिखली ये बाय टाइम केते टाइम हूँ 4 मिनिट ताको सेकेंड करदेवी 240 हो दैट इज प्रोपोर्शनल केते आसीबो टी माइनस टी नॉट तबे टी कौन पुट करबी टी पकेबी 85 द एवरेज ऑफ दिस टू वैल्यूज माइनस व्हाट इज टी नॉट द रूम टेम्परेचर केते कहि 15 कहि तो माइनस एम सी एटा केते एटा हेजिबो 1/8 हे गला इज प्रोपोर्शनल टू 70 हला ठीक अछि। तापर देखो से पचारची जे नेक्स्ट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल डाउन फ्रॉम 70 टू 40 तो सेकेंड केस में कौन लिखी ये माइनस एम सी इंटू देख 70 टू 40 जदि से चेंज हो तो केते हेबो चेंज इन टेम्परेचर 30 आसीबो डिवाइड बाय आमे टाइम लिखिबा केते टी लिखिबा आमे ए टाइम बाहर करबा दिस इज प्रोपोर्शनल टू अगेन टी माइनस टी नॉट तो एबे आमे को टी पकेबा एवरेज ऑफ दिस टू माने 70 प्लस 40 बाय 2 रहइजो केते रहइजो 55 होइजो सो 55 माइनस केते से एटा 15 ता माने माइनस एम सी 30 बाय टी इज प्रोपोर्शनल टू 40 तो एबे में आपको लिखे इक्वेशन नंबर 1 एटा हो इक्वेशन नंबर 2 आपको में डिवाइड कर देबा तो डिवाइड कले कौन हो देखो ये एम सी कटि गला हम पहले 1/t इंटू एटा टी बाय 30 हो इक्वल केते हो 70 बाय 40 तो ये टी केतला टी हूँ 70 बाय 40 8 इंटू 30 एटा हम 240 से सब पड़ेगा मल्टीप्लाई हो 240 तो एटा केतला 6 हो तो 70 इंटू 6 विल बी 420 सेकेंड्स तो 420 सेकेंड जहाँ 7 मिनिट्स है ठीक है। तब देखो आंसर कौन आसुची आंसर आसीबो 7 मिनिट त माने ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि एटा होची गोटे बढ़िया क्वेश्चन टा फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r a square is cut with the radius as its diagonal the distance of the center of mass of the remaining portion from the center of the disk is dash। देखो एक क्वेश्चन में केन सॉल्व करबा देखो एमती गोटे सर्कुलर डिस्क अछि लाइक दिस एंड सपोज इटा होची गोटे डायमीटर दिस इज द सेकंड डायमीटर लाइक एमती अछि तो आमे बे कोन करबा ए सर्कुलर डिस्क रु गोटे स्क्वायर पोर्शन को हमें रिमूव कर देबा आउ से स्क्वायर डायगोनल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द रेकॉर्ड डिस्क। देखो एमती एमती फिगर ड्रा करूची सपोज एमती गोटे स्क्वायर अच्छी लाइक दिस तबे मु कौन कली ए जो स्क्वायर पार्ट को मु रिमूव कर देली ठीक अछि such that the diagonal of the square is equal to the radius of the disk। तो से स्क्वायर को रिमूव कला परे आउ जति की पोर्शन बंचिबो तार सेंटर मास कोठी आसीबो देखो सपोज हम एठी अज्यूम करिबा सिग्मा कोन सिग्मा होची द मास पर यूनिट एरिया मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क ठीक अछि तो डिस्क रो रेडियस केते थला r थला तो डिस्क रो एरिया केते हेजिबो एरिया ऑफ डिस्क रो एरिया केते हेजिबो एटा हेजिबो पाई r स्क्वायर हेजिबो तो डिस्क रो मास केते हबो मास ऑफ डिस्क विल बी पाई r स्क्वायर इनटू सिग्मा माने एरिया ऑफ द डिस्क इनटू सिग्मा मास पर एरिया। तापर देखो आमे बे जो स्क्वायर नेचे से स्क्वायर डायगोनल के देछि इक्वल टू रेडियस तो मतलब को एरिया ऑफ द स्क्वायर केते आसीबो एटा आसी जिवो r स्क्वायर बाय 2 पळे आसीबो ठीक अछि एरिया ऑफ द स्क्वायर तो मास ऑफ स्क्वायर केते आसीबो
मास ऑफ स्क्वायर आसीबो केते आमे स्क्वायर एरिया रे मल्टीप्लाई कर देबा सिग्मा तो एटा जो r स्क्वायर सिग्मा बाय 2 r स्क्वायर सिग्मा बाय 2 तबे मते को मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन केते आसीबो ना टोटल मास पाई r स्क्वायर सिग्मा माइनस मास ऑफ द स्क्वायर r स्क्वायर सिग्मा बाय 2 जदि मैं एठू r स्क्वायर आउ सिग्मा कॉमन निकली एटा केते हबो एटा हिजबो पाई माइनस 1/2 बाटा केते हिजबो r स्क्वायर सिग्मा इनटू 2 पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 ठीक अछि सो दिस इज द मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ओके तो एबे देखो आमे जो स्क्वायर को रिमूव कले से स्क्वायर रो मास आमे केते पाइले r स्क्वायर सिग्मा बाय 2 पाइले तो स्क्वायर सेंटर मास कोट हुए at the point of intersection of the two diagonals ता माने ए जो अच्छी पॉइंट आको मैं कहबी पॉइंट O1 O कोन होची सेंटर ऑफ द डिस्क O1 कोन O1 होची द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्क्वायर ता माने आमे या कहि परिबा जदि एटा O हला एटा O1 हला तो O रु O1 भितरे केते हबो डिस्टेंस एटा हिजबो r/2 ठीक अछि करना एडा होची पूरा r अछि द होल डायगोनल टा एडा डायगोनल हाफ रहउची ता माने o रु o1 केते r/2 हबो तो आमे जानि छे द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ मास ता माने कोन जदी आमे जानि छे जे एवरी सब्सटेंस कैन बी बैलेंस्ड अबाउट द सेंटर ऑफ मास ठीक अछि ता माने आमे तेबे ए जो स्क्वायर पार्ट नेले ए स्क्वायर पार्ट रो एंटायर मास कोडी अछि एट o1 ता माने जो रिमेनिंग पार्ट रहिला डिस्क रो तार सेंटर मास ओ रो तळ ही आसीबो के ऊपर रही परिबो नाही काहे कि हम जानि छे जदी गोटे कोन गोटे बॉडीटा पॉइंट ओ रे बैलेंस ही रहउची ता माने जदी तार लेफ्ट रे O1 रे गोटे मास अछि राइट रे O2 रे गोटे मास अछि तो वर्तमान एठी m1 मास एठी m2 मास अछि द डिस्टेंस इज d1 एंड दिस केते एटा होची d2 ता माने m1 into d1 केते हबो m2 into d2 हबो तो एटा होची कोन होची प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ मास तो मन रख एठी हमें जो रिमेनिंग पोर्शन पाइबा से रिमेनिंग पोर्शन रो सेंटर मास जेमथले भी तळे आसीबो सपोज एट द पॉइंट O2 हमको बाहर करबे अछि O रु O2 रो केते डिस्टेंस तो एठी हमें को फार्मूला यूज करबा जेमते म कहितली मास ऑफ द स्क्वायर केते द मास ऑफ स्क्वायर इज r स्क्वायर सिग्मा बाय 2 and the distance of this mass of square from the center kete achi O1 and it is r/2 जेन म कहितली O1 केते हबो डा होची r/2 हबो आउ रिमेनिंग पार्ट रो सेंटर मास कोडी आसीबो O रो तळे आसीबो एट द पॉइंट O2 आउ रिमेनिंग पार्ट रो केते मास रिमेनिंग पार्ट रो मास होची सॉरी द मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट केते r स्क्वायर सिग्मा बाय 2 into 2 pi minus 1 आउ ए जो रिमेनिंग पार्टा सपोज O2 रे अछि तो केते बो डिस्टेंस O2 हेला हमको बाहर करे अछि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ O2 ठीक अछि तब देखो एठी एटा केते जो एटा हेजबो r टू द पावर 3 सिग्मा बाय 4 इक्वल टू r स्क्वायर सिग्मा बाय 2 into 2 pi minus 1 तो एठी सिग्मा सिग्मा कटि जिवो r स्क्वायर एठी r कटि गेला गोटे r रहिबो तो एबे 2 भी कटि गेला तो आमे एठी कोन पाइबा हमको बाहर करे अछि O2 केते सो O2 केते हेजिबो दैट इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2 into 2 pi minus 1 r डिवाइडेड बाय 2 into 2 pi minus 1 दा माने ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट में जिबा the last question number 60 एटा होची कोटे कैपिलरी एक्शन ऊपर क्वेश्चन देइची अगेन मोर फार्मूला कहि देबी जस्ट पुट दोस वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर तो कैपिलरी राइज रो फार्मूला कोन h हला केते 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r rho g h माने कोन द हाइट अप टू व्हिच द फ्लूइड हैज रेज्ड तो एटी हाइट केते कहि देइची हाइट कहि देइची 28 सेंटीमीटर कहि देइची एंड व्हाट इज थीटा थीटा होची एंगल ऑफ कांटेक्ट तो cos 17 लिखिबा एंड द वैल्यू ऑफ cos 17 दे दीजिए एटी 0.956 कहि दीची
आर माने रेडियस केते हबो द डायमीटर केते को 0.25 कहि देछि तो रेडियस केते हबो तार हाफ कर देबो डेंसिटी भी कहि देछि एठी जी केते जी को मैं 9.8 पके देबा सो हमक एस बाहर करे अछि एस केते एस हबो 2 सॉरी h into r rho g divided by 2 cos theta. So put this value, so put all these values in this expression and you'll get the answer get about 15.65 into 10 to the power minus 3 Newton per meter. So friends आज मैं already 20 question solve कर सारे तो बाकी जा क्वेश्चन है ताको मैं नेक्स्ट क्लास डिस्कस करिबा आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सॉल्यूशंस बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन पुणे में देखा नेक्स्ट वीडियो रे सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय.